Good morning, student. This is Anuchar, your science teacher from Halvasya Vidyavihar. We have already done our first chapter, that is reproduction in plants. Today we will start our second chapter, that is animal lifestyle. In it we will discuss what are vertebrates and what are non-vertebrates, and you can say invertebrates. Let's start. Animal can be divided into two groups. We can divide all the animals on earth into two categories, or you can say into two groups. First is vertebrates and second is invertebrate. Vertebrates are those animals which have skeleton, जो skeleton होता है जिनके, ठीक है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इन सब में skeleton होता है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है. तो these are called vertebrate animals, and those animals which do not have any skeleton, that are called invertebrates. You can see that fish, frog, snake, lion, cow, monkey, human beings also. And on the other hand you can see shellfish, coral, crab, jellyfish, scorpion, earthworm, mosquito. इनको हम डिवाइड कर सकते हैं टू ग्रुप्स में. जिनके स्केलेटन होता है वो वर्टिब्रेट्स, और जिनके स्केलेटन नहीं होता बॉडी में उनको इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है. जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है तो हम उसकी वजह से वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं. और आप जेलीफिश को देखेंगे तो उनकी शरीर में स्केलेटन नहीं होता, हड्डियों का ढांचा नहीं होता, तो उसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. Now we see a variety of plants and animals around. The place where an animal or plants live is called its habitat. You all know that plants habitat is a place where an animal can live freely, can reproduce, can find food for himself or itself, and live comfortably with that place is called its habitat. ऐसी जगह जहाँ पे आपके एनिमल्स आराम से रह पाएँ विदाउट एनी फियर एंड, ठीक है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, that is called its habitat. And you can say that in other words the surrounding in which an animal lives is its habitat. ऐसी सराउंडिंग आसपास के एरिया जिसमें वो एनिमल रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है. There they can produce, they can feed themselves and also live freely there. Animals have special features that enable them to adapt themselves to the different habitat or environment. All the animals have special features that enable them to adapt themselves to the different habitat or environment. We all have some special features, such as human beings have one pair of foot by which they can walk. हाँ, जैसे कि हमारे पैर होते हैं फुट के जिसकी सहायता से हम चल सकते हैं, लेकिन काऊ है 2 hind limbs and 2 fore limbs, वो 4 पैरों पे चलते हैं, तो वो अडेप्ट हैं अपने 2 fore limbs और 2 hind limbs की सहायता से वो चल सकते हैं. तो वी ऑल आर अडेप्टेड टू आवर इन्वायरमेंट, और यू कैन से टू आवर हैबिटेट. हम हमारे हैबिटेट या रहने की जगह या फिर इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्टेड हैं. टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस एन एनिमल अडेप्ट इटसेल्फ और ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस टू इट्स सराउंडिंग. हमें किसी जगह पे रहना है, ठीक है, तो हमें अपने आप को अडेप्ट कराना होगा, अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए उस जगह से कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं, या तो सराउंडिंग में या हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. अडेप्टेशन ऑफ एनिमल कैन बी इन देयर बॉडी, कवरिंग, फीडिंग हैबिट, और यू कैन से वे ऑफ मूवमेंट. अडेप्टेशन किसी भी चीज़ में आ सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी कवरिंग कैसी है, हमारे शरीर का कवर कैसा है, और हमारे फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, हम क्या खाना खाते हैं, और यू कैन से हम चलते कैसे हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड अडेप्टेशन. वी कैन क्लासीफाई एनिमल बेस्ड ऑन देयर अडेप्टेशन. हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं उनकी अडेप्टेशन के आधार पर कि कैसे
all the animal adapted to their environment, or you can say to their habitat. And we can also classify animal based on the adaptation, on their adaptation. हम adaptation के उसके ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे एनिमल्स को. And the first classification of animals on the base of their body covering. बॉडी कवरिंग, उनकी बॉडी कैसे कवर्ड अप है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्केल्स. द वाटरप्रूफ स्केल ऑफ फिश इनेबल देम टू लिव इन वाटर. द लेदरी स्केल्स ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. यू ऑल नो दैट फिश ऑलवेज लिव इन वाटर, दे कांट लिव विदाउट वाटर. वो पानी के बिना नहीं रह सकते. सो दे हैव टू स्टे इन वाटर ऑल द टाइम. और उनके हमेशा पानी में रहना पड़ता है. तो दे हैव सम वाटरप्रूफ स्केल्स. ठीक है, दे हैव सम वाटरप्रूफ स्केल्स जिससे उनकी बॉडी में पानी नहीं जाता. द लेदरी स्केल्स ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड प्रिवेंट वाटर लॉस. और जो लेदर स्केल्स होते हैं लिजार्ड्स के और स्नेक्स के, तो वो उनकी बॉडी से पानी को कम एवोपरेट होने लग देता है. जैसे हमारे तो गर्मी में स्वीटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो हम लॉस करते हैं वाटर से, जिससे हमारी बॉडी कूल डाउन होती है. लेकिन ये ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं, पानी में रहते नहीं हैं, तो इनको अपने पानी का लॉस कम करना है. इसलिए इनकी बॉडी पे कैसे स्केल्स होते हैं, लेदरी स्केल्स. ठीक है, जिससे उनकी बॉडी से पानी का लॉस कम हो सके. सेकेंड वन इज सेल्स. बॉडीज ऑफ सम एनिमल लाइक टर्टल एंड टोटराइज आर कवर्ड विद अ हार्ड सेल. They withdraw their feet and head into the cell when in danger. You all know that turtle and tortoise are big in size. ये बड़े होते हैं शरीर में. They have to protect themselves. So nature gave them a hard cell. ठीक है, नेचर ने उनको क्या दिया है, हार्ड सेल दिया है, जिसकी सहायता से जब भी दे फील एनी डेंजर दे विड्रॉ देयर फीट एंड हेड इनटू द सेल व्हेन इन डेंजर. जब भी वे फील करते हैं तो वो अपने जो भी फिट हैं या हेड है उसको विड्रॉ कर लेता है, उसको अपनी कवर के अंदर कर लेता है. और वो ऐसे हो जाता है जैसे उसके अंदर लाइफ ही नहीं है, वो ऐसे रहता है. तो ये उसको हेल्प करता है डेंजर से प्रोटेक्शन में. थर्ड वन इज हेयर और फर. वी ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी. हम सब इस कैटेगरी में आते हैं. द बॉडीज ऑफ मैमल्स आर कवर्ड विद हेयर. इट कीप्स देयर बॉडी वार्म्स. हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, या यू कैन से सिप के, बियर के, आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, इनकी बॉडी हमेशा बालों से ढकी रहती है, तो ये उनको गर्मी देने में हेल्प करता है. तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वी ऑल्सो हैव हेयर्स ऑन आवर बॉडी, बट वी आर अडेप्टेड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड वी डेवलप सो मैनी थिंग्स टू प्रोटेक्ट अस. But the wild animals, and you can say animals, don't have such types of adaptation, and nature give them hair. Like with hair, it keeps their body warm. तो जो mammals होते हैं, mammals you all know that giving birth to young ones and also feed their milk to their young ones. तो आप mammals को जानते हैं कि जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं या फिर अपना दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं. और मैमल्स के शरीर या बॉडी हमेशा बालों से ढकी होती है, तो उसको हम मैमल्स की कैटेगरी में लेके आते हैं, और ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को गर्म रखने में. नेक्स्ट इज स्पाइंस. ए प्रोकोपाइन हैज स्पाइंस ऑल ओवर इट्स बॉडी. उसकी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज. इनकी जगह क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम एनिमीज. तो आप देखते हैं जो ये प्रोकोपाइन है, इसकी बॉडी पे स्पाइन्स है, कांटे. इफ एनीबॉडी वांट टू टच इट, इट्स थ्रो इट्स ऑल द स्पाइन टू दैट पर्सन, या यू कैन से दैट एनिमल. जब इसके ऊपर कोई टच करना चाहता है या इसको कोई तंग करना चाहता है, तो ये अपने रिलीज कर देता है स्पाइन्स को, जिससे जो भी इसको तंग कर रहा होता है, जो एनिमल इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसको स्पाइन से
पेन होता है वो इसको छोड़ देता है। तो नेचर गिव इट्स दिस पावर टू रिलीज इट्स स्पाइन। तो नेचर ने इसको स्पाइन रिलीज करने की पावर दी जिससे वो अपनी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट and use you can see here also squirrels. It has a long and bushy tails which protect it from cold. ये bushy tail होती है तो ये उसको अपने ढक के रहती है अपने शरीर को, तो इससे उसको वार्मथ मिलता है। नेक्स्ट इज feathers. The body of bird is covered with feathers. Feathers help the birds to fly and keep their body warm. You all know that all birds almost fly except some, जैसे you can see emu, ostrich वगैरह, क्योंकि उनकी बॉडी हैवी होती है तो they can't fly. But almost all the birds fly. Their body is covered with feathers. उनकी बॉडी पंखों से ढकी होती है। फीदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडी वार्म। जैसे हमारे हेयर्स हेल्प करते हैं टू कीप देम आवर सेल्फ वार्म, तो ऐसे उनके फीदर्स हेल्प करते हैं बर्ड्स की टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडी वार्म। उनको उड़ने में और उनकी बॉडी को गर्म रखने में फीदर्स, जो भी उनके पंख हैं, वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज. The ability to merge with the environment is called camouflage. It helps the animal to protect itself from its enemy and also make it easier for it to catch prey. You can see here in this picture, insect is totally camouflaged with on the color of leaf. आप देख सकते हैं इंसेक्ट ने बिल्कुल कलर कर रखा है अपनी लीफ का जैसे अपनी बॉडी का, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दिस कैमोफ्लेज। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के तरफ, तो इसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। मर्ज विद, अपने आप को मर्ज कर लेना सराउंडिंग्स के साथ ही कैमोफ्लेज कहलाता है। ठीक है, एंड नाउ वी कैन डिस्कस द एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फीडिंग हैबिट्स. You all know that all the animals are divided into 3 categories on the basis of feeding habits. First is herbivores, second is carnivores, third one is omnivores. Herbivores are those animals which only eat plants and plant products. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं वो हर्बीवोर्स कैटेगरी में आते हैं. दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. उनके जो दांत होते हैं प्लांट्स को काटने के लिए वो शार्प होते हैं और उनको ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंड मतलब पीसने के लिए अपनी बॉडी में छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाने के लिए, तो ऐसे उनके दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. और उनके लंबे और स्ट्रॉन्ग, क्या, क्योंकि उनको खाने की तलाश में इधर से उधर घूमना पड़ता है, तो उनके लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं खाने की तलाश में घूमने के लिए. सच एज काउ, गोट, बेफेलो, सिप, यू कैन से एलिफेंट एटसेट्रा. Second one is carnivores are those animals which feed upon flesh of other animals. ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस से, और वो उस मांस को खाते हैं. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स एंड दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ टू टीयर द फ्लैश एंड ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू द फूड. आगे के दांत उनके काफ़ी शार्प होते हैं. आपने कैट को देखा होगा, उसके 4 दांत जो होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर की साइड, काफ़ी तीखे होते हैं. ठीक है, पेन्ने होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, शार्प टीयरिंग टीथ. वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं. दे फीड अपन ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग टीयरिंग टीथ.
उनके जो आगे के दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं ताकि वो दूसरे की बॉडी को काट पाएँ, ठीक है। एंड ब्रॉड बैक टिथ, और जो पीछे के टिथ होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं जैसे हमारे होते हैं, ठीक है, जिस पे हम खाना चबाते हैं रख के। तो जो ब्रॉड बैक टिथ होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। दीज आर दोज एनिमल्स विच कैन ईट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, एनिमल्स भी एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी। तो दे आर कम इन द ओमनिवोर्स कैटेगरीज लाइक कैट, डॉग, crow, and we also in this category animals, क्योंकि all the human beings are not vegetarian, there are some non-vegetarian human beings also। आप सबको पता है कि human beings जो कि इंसान है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाता, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो we also fall in this category, and both plant and animal eating animal use their canine, incisor and molar to eat different kinds of food. Birds have hard and short beaks। तो आपके जो आगे के कैनाइन होते हैं, इंसीजर होते हैं, ये आपके डिवीजन ऑफ टिथ हैं, आपके भी हैं क्योंकि आप ओमनिवोर्स कैटेगरी में ऐसे आते हैं। तो इनकी सहायता से वो अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। अगर काटने के आते हो तो हमारे जो इंसीजर हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, फिर मोलर्स हैं ब्रॉड होते हैं। तो हम कैनाइन्स जो आगे के हैं उनको भी काटने के काम आता है मांस को। तो हम इस तरह से ओमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं। ऑन द अदर हैंड बर्ड्स हैव हार्ड, ठीक है, बर्ड्स हैव हार्ड एंड शॉर्ट बीक्स। बर्ड्स के दांत नहीं होते, दे डू नॉट हैव एनी टिथ, दे ओनली हैव हार्ड एंड शॉर्ट बीक। उनके काफ़ी जो चोंच होती है वो हार्ड होती है और शॉर्ट होती है। वो भी डिपेंड करता है उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। देयर बीक कैन बी शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्रॉड। ये काफ़ी डिपेंड करता है कि वो कैसा उनकी फूड हैबिट है, ठीक है, उनके ऊपर ही उनकी बीक की शेप डिपेंड करती है। दिस इज ऑल अबाउट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। In the second video, or you can say in the second part, we discussed based on movement, ठीक है, एनिमल्स बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। एनिमल्स को हम मूवमेंट्स के बेस पे डिवाइड करेंगे। यू कैन से दैट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, बट वी ऑल डिस्कस these things in the next video. Till then, bye bye children and take care. And you also revise your first chapter. As I told you, I can take your surprise test anytime. Till then, bye bye.